So the next question is from the computer graphics, and in this question, before we are moving towards the question and find out the correct answer, so let's take a look ki what the basic different shading models we have in the computer graphics. So to shade any polygon with different colors, and we have three different techniques like flat shading, जिसके अंदर हमें लेस कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है, देन गॉरिड शेडिंग एंड द फोंग शेडिंग, जिसके अंदर वी नीड अ वेरी हाई कंप्यूटेशन वी नीडेड. ठीक है. सो इन द फ्लैट शेडिंग बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी आर, लेट्स सपोज कि दिस इज द पॉलीगन वी हैव, एंड इन दिस पॉलीगन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द normal vectors like this, right? So this normal vectors, so this is a one surface of one polygon, जैसे कि this is the surface of a one polygon, this is the surface of a one polygon. So if we have this surface now, then we are drawing the normal vector for this, and whatever the intensity value we are getting from this now, from this point. So intensity value, you know that because in the frame buffer also we are putting the intensity values of each and every pixel. So whatever the point is present here and whatever the intensity value is present here, we are going to color it. Let's suppose the red color is there, right? So red color shading we are going to do is at this part, right? The same way for this vector, the same way for this vector, and the same way for this particular surface के लिए, right? So in this way we are going to able to shade each and every surface of the polygon. But there is a problem is that if let's suppose the two surfaces are overlapping, then in that case we are not getting the smooth shading in this flat shading. So that is the reason we are more exploring the different types of a shading. The second one is graded shading, we call it as a smooth shading also. So basically there is a very slight difference. You can say that there is a slight difference between the foam shading method and the smooth shading. देखो इसमें क्या होता है कि let's suppose you have a polygon. ठीक है. अब there is a polygon present over here. Let's suppose this is a polygon. ठीक है. ये एक polygon है. Agree? So this polygon के लिए let's suppose I'm targeting the vertices. So basically they are targeting the vertices. अब vertices से ये vertices belongs to this surface also, this surface also, and this surface also. So we are going to draw the normal vector for this surfaces. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, we are going to interpolate the colors of the vertices. हम क्या करेंगे, इस वर्टिसेस से जो रिलेटेड कलर्स हैं, इन कलर्स को हम इंटरपोलेट करेंगे. मतलब इंटरपोलेट मतलब कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सम एवरेज वैल्यू, जो सबके लिए एक एवरेज निकल जाए, राइट? सो दैट इज द रीजन यहाँ पर इन द स्मूथ शेडिंग में वी आर इंटरपोलेटिंग द कलर्स ऑफ द वर्टिसेस, एंड देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द शेडिंग फॉर द डिफरेंट सर्फेसेस. ठीक है. अब देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फोम शेडिंग एंड यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली हम यहाँ पर इंटरपोलेट नहीं करते हैं कलर्स को, कलर ऑफ द वर्टिसेस को इंटरपोलेट नहीं करें. ऑल्सो वी आर गोइंग टू इंटरपोलेटेड एक फाइनल एवरेज वैल्यू वी आर फाइंडिंग इट आउट. बट यहाँ पर इंटरपोलेट करेंगे हम नॉर्मल वेक्टर्स का, जो हम ड्रॉ करेंगे उसके रिस्पेक्टिव ऑफ द नॉर्मल वेक्टर्स फॉर द ईच एंड एवरी सरफेस. यहाँ पर हम एक जो वर्टिसेस का जो कलर था उसको हम इंटरपोलेट कर रहे थे, जो इस सारे वर्टिस इस सर्फेसिस से जो लाइक कर रहा था, राइट? हियर वी आर इंटरपोलेट द कलर्स, इंटरपोलेट द नॉर्मल वेक्टर्स, एंड देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द शेडिंग कलर्स थ्रू विच वी वांट टू fill the different surfaces of the polygon. So that thing we are going to see in a very detailed manner in a complete course. But for this I think this much information is required to solve this particular question. Now let's come back to this and let's see this. So concerning foam shading and God shading in the 3D scene, which of the following statement are true? So God shading requires more computation. Is this true? No, not at all. फ्लैट शेडिंग सबसे ज्यादा कम कंप्यूटेशन, फिर उसके बाद कौन है, फोम शेडिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वर्टिसेस से काम हो रहा था. वर्टिसेस पे जो कलर था उससे हम उसको इंटरपोलेट करके उसको डिफरेंट सरफेसेस में अप्लाई कर रहे थे. बट हियर फोम शेडिंग के अंदर वी आर इंटरपोलेटिंग द नॉर्मल वेक्टर्स, जो इस वर्टिसेस के लाए जो सर्फेसेस हैं उनके नॉर्मल वेक्टर्स को इंटरपोलेट करके वी आर शेडिंग इट.
So it's require more computation, more work. So that is the reason this is absolutely wrong. Gouraud shading linearly interpolate the color of an interior pixel from the color at the vertices. Interpolate कर रहे हैं color of the interior pixel from the color at the vertices. Absolutely right. This is what we are doing it. Phong shading interpolate over the normal vectors. Yes, interpolate over the normal vector, not the color of the vertices. यहाँ पर color of the वर्टिसेस पर हम इंटरपोलेट कर रहे थे, यहाँ पर इंटरपोलेट कर रहे हैं ओवर द नॉर्मल वेक्टर स्पेसिफाइड एट द वर्टिसेस. जो वर्टिसेस के अराउंड जो सरफेसिस हैं उन पे जो पॉलीगन जाएगा उसका इंटरपोलेट करेंगे फॉर द शेडिंग पर्पस. सो बोथ द स्टेटमेंट आर राइट बट दिस इज वन इज द रॉन्ग. सो दैट इज द रीजन द ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन. ठीक है, समझ में आ गया. So let's see the next question. Basically it's from the software engineering and इस question को आप कर सकते हो claim, because इसका जो answer है in the official key they are giving the option number 4 but the right answer is option number 3. What is the reason behind this? Because you know that कि here they are talking about the maintenance. तो maintenance basically होती कब है? जब आप एक प्रोडक्ट को, एक सॉफ्टवेयर को, जब व्हेन यू आर ऑलरेडी डिलीवर्ड इट टू द कस्टमर, ठीक है ना, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही है, लेट्स सपोज की प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे कोई एरर शो हो रहा है, राइट, तो उसके लिए आई एम यूजिंग द करेक्टिव मेंटेनेंस, राइट. अब अडेप्टिव मेंटेनेंस अगर मुझे यूज करनी है, अडेप्टिव मेंटेनेंस में बेसिकली क्या होगा कि आपको इफ यू आर, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जो iOS पे काम करेगा, ठीक है, आपके पास विंडो है, राइट, तो वो उस पर काम नहीं करने वाला ऑब्वियसली, तो उस केस में वी आर यूजिंग द अडेप्टिव मेंटेनेंस. अब परफेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव, परफेक्टिव मतलब कोई भी चेंजेस आपको लेके आने, न्यू चेंजेस, न्यू रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है नहीं है, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग द परफेक्टिव मेंटेनेंस. और प्रिवेंटिव मतलब फ्यूचर के लिए वो चीज़ हम उसको एक सेव कर पाए, तो वी आर यूजिंग इन दैट टाइम प्रिवेंटिव. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग. यू नो दैट कि रीस्ट्रक्चरिंग का बेसिकली मतलब यही होता है कि यू हैव वन फंक्शनैलिटी, अब उस फंक्शनैलिटी को you don't need to change it and you have to add some new functionalities in that particular module. वही आपकी restructuring है. तो इसमें यही तो हो रहा है कि हम new changes हम लेके आ रहे हैं, new जो भी हमें functionalities हैं we are going to add it. So वो चीज़ होती कहाँ पर है? परफेक्टिव मेंटेनेंस में होती है. तो सॉफ्टवेयर रीस्ट्रक्चरिंग इज अ फॉर्म ऑफ perfective maintenance that modify the structure of a program source code. Its goal is increase maintainability to better facilitate other maintenance activities, जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं न्यू फंक्शनैलिटीज अनडिटेक्टेड एट द सॉफ्टवेयर सिस्टम. सो दैट इज द रीजन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है एंड ये क्वेश्चन आपका है अप्रोचेस टू एआई विच इज चैप्टर नंबर 1. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जस्ट गाइज, so the next question is match the following. So in the match the followings we have a different problem solving techniques. So first one is branch and bound, second one is steepest ascent, hill climbing, constant satisfaction and mean and analysis. तो you know that जैसे कि मीन एंड एनालिसिस इज द बेस्ट वन, कि इसमें हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि वी हैव दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट. अब इसमें अब मुझे क्या करना है, दिस इज माई इनिशियल स्टेट and I want to go back to the final state, और इस final state में what exactly I wanted कि let's suppose कि I have a one dot over here is, and in the goal state I want only this particular, sorry, yeah, so let's take this triangle like this only. So in this you can see that in the goal state there is no dot over here and my triangle, I also rotate my triangle also in the डाउनवर्ड साइड. ठीक है, तो ये वाली चीज आई वांट टू अचीव इट. सो इन दैट केस आई एम यूजिंग द मीन्स एंड एनालिसिस. में क्या होता है, डिटेक्शन होता है गोल स्टेट और इनिशियल स्टेट में, और उसका फाइंड करते हैं हम डिफरेंस, और फिर उस डिफरेंस की हेल्प से हम वहां तक जाने की कोशिश करते हैं, राइट. तो ये तो बहुत ईजी था कि देखो यहाँ पर डी का होगा डेफिनेटली सेकंड, डिटेक्ट डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट. तो अगर आपको यही पता चल गया है तो बाकी का तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो ये एक ही ऑप्शन है.
फिर भी देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन में क्या होता है आपका, बेसिकली डिस्कवर प्रॉब्लम्स दैट सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट, नाम से पता लग रहा है कंस्ट्रेंट अगर आ रहे हैं तो इसमें तो इन्होंने वैसे ही सबका थर्ड दिया हुआ है, राइट। स्टीपेस्ट एक्शन हिल क्लाइंबिंग में क्या होता है, बेसिकली कंसिडर ऑलमोस्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रेंट एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल हिल क्लाइंबिंग होती है वहां पर आप क्या करते हो, इफ यू आर एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन एंड इफ योर एडजेसेंट मूव is better than you, only then you are going to move, otherwise you just stop it here, you're just standing over here only. But in the steepest ascent hill climbing के अंदर what the problem they are considering it कि जो भी हमारे पास different moves available है ना, अगर if I'm standing over here is and if I have a different moves over here, then in that particular case ना I am only standing over here only, ठीक है ना, और आई एम एनालाइजिंग द रेस्ट ऑफ द अदर मूव्स एंड एनालाइजिंग कि अच्छा विच वन आई एम गोइंग टू चूज इट एंड जिसके साथ मुझे स्वैप करना है, राइट। तो स्टीपेंट एक्सेंट इस तरीके से आपका काम करता है। एंड लास्ट वन इज ब्रांच एंड बाउंड, कीप ऑल ट्रैक पार्शियल पाथ विच कैन बी कैंडिडेट फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन, ये तो हमने वहां भी किया है इन द एल्गोरिथम पोर्शन में, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द कंप्यूटर ग्राफिक्स, सो लेट्स सी इट नाउ। द स्टेटमेंट नंबर 1 सेज दैट, ये भी आपका यूनिट नंबर 3 से ही है, ठीक है ना। बेजियर कर्व्स आर कर्व्स दैट इंटरपोलेट ऑल देयर कंट्रोल पॉइंट्स एंड द स्टेटमेंट नंबर 2 इज अ क्यूबिक बेजियर कर्व्स हैज 4 कंट्रोल पॉइंट्स। सो लेट्स सी दिस कि व्हाट द एग्जैक्टली द आंसर इज। सो इन योर I'll just show you and will give you just brief idea about this. तो basically हमारे पास जो Bezier curves होती हैं, why we are using this Bezier curve? So basically these Bezier curves to to draw this kinds of a curve. Curves को draw कैसे करें with the help of computers? So that this is the reason we are using this Bezier curve. Basically it is discovered by the Pierre Bezier. So that is the reason we call it as a Bezier, right? So these curves can be generated under the control of other points. So what does it mean that? And approximate tangent by using the control points used to generate the curves. So let's suppose कि मैंने यहाँ पर use किए 2 control points P1 and P2 and this is how I am able to draw the line like this, ठीक है। अब let's suppose I am using the 3 control points. इफ आई, अब यहां से क्या होगा, एक टेंजेंट जाएगी, यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ होगी एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू ड्रॉ अ वन कर्व। इन दिस वे ऑल्सो वी आर यूजिंग द क्यूबिक से भी हम 4 कंट्रोल पॉइंट से भी वी आर एबल टू ड्रॉ इट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कर्व्स होती हैं, ये कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं और उसमें हम कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स में हम टेंजेंट की हेल्प से वी आर एबल टू ड्रॉ द कर्व्स। अब मैं ये बोलती हूँ कि इफ आई एम यूजिंग द 4 कंट्रोल पॉइंट्स की हेल्प से मेरी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, इफ आई हैव अ 4 कंट्रोल पॉइंट्स माय डिग्री शुड बी 3. दैट इज द रीजन आई एम कॉल इट एज अ क्यूबिक बेजियर कर्व. इफ माय कंट्रोल पॉइंट्स आर 3 देन माय डिग्री ऑफ द कर्व इज 2. दैट इज द रीजन आई एम कॉल इट एज अ क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व. ठीक है ना, यहाँ पर 2 कंट्रोल पॉइंट्स है तो डिग्री शुड बी 1, so दैट इज वी कॉल इट एज अ सिंपल बेजियर कर्व. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या समझने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इंटरपोलेशन. यहाँ पर इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? इंटरपोलेशन मीन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स. ठीक है ना. अब देखो, अगर मुझे P1 एंड P2 है हमारे पास. P1 जैसे अगर मैं कहूं कि अगर मुझे कोई कर्व ड्रॉ करनी है तो उसके लिए इफ लेट्स सपोज कि दिस इज माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय एंड पॉइंट, यहां पर आई हैव टू एंड इट. So this is the assumption, this is the condition over here कि आपका जो कर्व है वो इनिशियल और एंड पॉइंट से तो होके जाएगा ही जाएगा. बाकी के जो बचे हुए आपके पास लेट्स सपोज कंट्रोल पॉइंट्स है, वहां से वो शेप अप देने के लिए वो उनसे क्रॉस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है ना. तो उसी को इंटरपोलेशन हम इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर वी हैव अ 3. तो यहाँ पर हमने सिर्फ इससे हम इससे इसको कवर नहीं किया है, बट स्टिल इट इज यूज फॉर दी फॉर गिविंग द प्रॉपर शेप, राइट.
So यहाँ पर the question is that in the statement number 1, Bezier curve are curve that interpolate all of their control point. No, it's not like that. Some of the control points they are not going to cross it, and they are just using for the to shape up. So that is the reason this is not a true. And a cubic curve, Bezier curve has 4 control point. Yes, this is so true, because अगर हमारे पास 4 control points होंगे तो उसकी help से हमें मिला 3, इसकी क्या होगी, डिग्री होगी किसकी, Bezier curve की. दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज अ क्यूबिक. सो दैट इज द रीजन द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर सेकेंड इज ट्रू. ठीक है. नाउ लेट्स क्वेश्चन इज फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट से बेसिकली लिया है, और हमें पता है कि वहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस. तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ये हमने क्लास में भी किया था बहुत अच्छे से, मैंने उसी की क्लिपिंग ली है. सॉफ्टवेयर एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना. तो जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस रहती है ये थ्रू आउट द प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है ना. तो इट्स लाइक अम्ब्रेला एक्टिविटी. जो भी अम्ब्रेला एक्टिविटी आपकी थ्रू आउट द प्रोसेस है वो पैरेलली टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आपकी चलती रहती है. और इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी आ रही है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, चेक पॉइंट्स, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, गुड रिलेशन, ऑल द थिंग्स. बट वेन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल कम्स इनटू द पिक्चर, बेसिकली ये ज्यादा मेन काम यही कर रहा है कि अप्रोचेस, टेक्निक, मेथड, प्रोसेसेस आर डिजाइन किए जाते हैं फॉर फॉलोइंग द करेक्टली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक्टिविटीज, ऑपरेट एंड वेरीफाई द एप्लीकेशन मीट द डिफाइंड स्टैंडर्ड, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही, ये सारी चीजें. ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. सो लेट्स सी द व्हाट इज शुड बी द करेक्ट आंसर. तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ इंस्पेक्शंस, रिव्यूज, टेस्ट यूज टू थ्रू आउट द प्रोसेस. वी जस्ट सी इन दिस राइट कि ये हर इस तरह को डिजाइन करते हैं कि हम वी कैन एबल टू गेट द आइडिया कि वट एवर द वी हैव डिफाइंड इट फर्स्टली वी आर एबल टू अचीव इट और नॉट. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज सॉफ्ट क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. येस, बिकॉज चेक पॉइंट्स वगैरह मैंने आपको बताया था कि इसमें होते हैं. सो दैट इज द रीजन दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. So both the statement are right. Now we have the next question, and basically this question is from software engineering, and it's while looking at this now this is looking difficult, but it's very easy. And this question basically they have taken from GATE 2011 पेपर. ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट उन्होंने चेंजेस किया, अदरवाइज द कंप्लीट क्वेश्चन इज कंप्लीटली सेम. अ कंपनी हैज अ choice of 2 languages L1 and L2 to develop a software for their client. Number of LOC required to develop an application in L2 is thrice the LOC in language L1. Also, software has to be maintained for next 10 years. Various parameters for 2 languages are given. Parameter हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, मैन पर ईयर नीडेड टू द डेवलपमेंट, उसमें लाइन पर कोड, एंड ये जो मैन पर ईयर नीड फॉर डेवलपमेंट दिस इज द डेटा, डेवलपमेंट कॉस्ट का दिस इज द डेटा, एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर दिस इज द डेटा. सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड आउट. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट include cost of development and maintenance. What is the line of code for L1 for which cost of developing the software with both the language must be same. अब आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपके पास L1 है, L2 है. जो आपका L2 है वो 3 टाइम्स है L1 के कंपैरेटिवली. ठीक है ना. तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कि लेट LOC हमारा L1 क्या है, X है. ठीक है, लाइन ऑफ कोड हमारा क्या है, X है. उन्होंने कहा कि वो 3 टाइम्स है. अगर हम लैंग्वेज 2 यूज करते हैं, दिस इज द लाइन ऑफ अ कोड इज 3 टाइम्स ऑफ द लैंग्वेज 1. सो दैट इज द रीजन L2 इज शुड बी 3x. ठीक है. नाउ अब हमें क्या करना है, ये हमने L1 के लिए लिखा, ये मैंने L2 के लिए लिखा, एंड लेट्स सी दिस. तो हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ कोड कितना है, लाइन ऑफ कोड मैन पर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट इतना, उनके ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी लगेगी, 70,000. ठीक है. तो लाइन पर कोड x बाय 1000 इंटू में 70,000 प्लस में हमारे पास कितने ईयर्स हैं, कितने ईयर्स में कंप्लीट होगा, 10 ईयर्स में, और उसकी जो कॉस्ट लगेगी पर ईयर वो कितना निकलेगी, 1 लाख.
सो दैट इज द रीजन 10 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू, अब इसका भी वही 3x डिवाइड बाय में एलओसी लाइन ऑफ कोड कितना है 3x ही है, डिवाइड बाय में 1000, मल्टीप्लाई में डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी लगी 90,000 रुपीज, प्लस में हाउ मेन ईयर दोनों के लिए सेम रहेंगे 10 इंटू में, और उनकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट रहेगी पर ईयर वो है 40,000. So 40,000. So you just need to find out the x value, and while calculating this you will get the 3,000. So the answer should be the option number 3. तो आपको if you have some little logical reasoning भी अगर आपको पता है aptitude है तो वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. Next question is also from the software engineering, guys. So which of the following are behavior testing technique? So you know that behavior testing technique को हम और क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. और अगर मैं बोलूं आपको इफ दे हैव गिवन यू स्ट्रक्चरल टेस्टिंग टेक्निक देन व्हाट वी कॉल इट एज ऑल्सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? मतलब हम बिहेवियर के अकॉर्डिंगली वी आर टेस्टिंग, है ना. और स्ट्रक्चरल मतलब वी आर गोइंग इन अ स्ट्रक्चरल वाइज की व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम वी हैव, उसके अंदर मॉड्यूल्स क्या है, लूप्स क्या है, एवरीथिंग वी आर जस्ट चेकिंग आउट फॉर द टेस्टिंग पर्पस. बट इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में यू नो दैट कि हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट के अकॉर्डिंगली वी आर चेकिंग आउट द बिहेवियर. तो गाइज दिस इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसको ही हम बिहेवियर टेस्टिंग भी बोलते हैं. ठीक है. थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए उन्होंने ये डाल दिया. तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट क्या है, वी हैव अ टेक्निक फॉर अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करते हैं हम मीन प्लस मैक्स माइनस मैक्स, और फिर वहां पर हम वैल्यूज को क्या करते हैं एनालाइज करते हैं. बाउंड्री वैल्यू अगर हम कहेंगे कि अगर बाउंड्री वैल्यूज पे अगर वैल्यू सही जा रही है तो वो बाकी टेस्ट केसेस भी फाइन चलेंगे. तो ये क्या है टेक्निक्स हैं. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस और ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग आर द टेक्निक्स फॉर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. सो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ग्राफ बेस्ड और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ टेक्निक विच वी आर यूजिंग इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ये जो है ये हमारी स्ट्रक्चरल वाली है. ठीक है ना. तो दैट इज द रीजन ABC इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द कंप्यूटर ग्राफिक्स. गाइज कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये क्वेश्चन है हमारा. तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन से है ये क्वेश्चन भी. Perspective projection, each set of parallel lines in the object do not stay parallel in the image. We know that कि we just see in this कि projection lines we have two types of projection. ठीक है ना. तो इसमें perspective projection में basically होता क्या है, perspective projection के अंदर जो आपकी जो lines होती है they are seems like कि they are merging at some particular point of time. So that is the reason we do not say that ki is satellite in the do not stay parallel in the image. So this is the correct statement. Applying a perspective transformation in the graphics pipeline involves dividing by its z coordinate. Yes, ठीक है. This is also correct. Perspective में इसमें हम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो that is the reason this one is incorrect. So option A and B is the right answer. Now the next question is from the AI, artificial intelligence का क्वेश्चन है ये. Which of the following are true? इसमें क्या है, अब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम लग रही थी, बट दिस इज द राइट आंसर दे हैव गिवन अस. द फर्स्ट ऑप्शन इज min max searches breadth first and process all the nodes at the level before moving to the next node in the next level. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर पहले से नहीं हम करते हैं. ठीक है ना. वी आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द कि जो हमने वैल्यूज हमने अल्फा और बीटा हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वी आर मूविंग इट. और वैसे भी इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च हम इसमें यूज करते हैं. द इफेक्टिवनेस ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर ऑन विच द स्टेट आर एग्जामिन्ड. एग्जैक्टली दिस इज द राइट वन. अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर हमारा जो हमारी डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच द स्टेट्स आर एग्जामिन्ड. जैसे जैसे हम स्टेट्स को एग्जामिन करते रहेंगे, जो हमारी स्टेप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इट्स जो इफेक्टिवनेस है डिपेंड ऑन इट. अल्फा बीटा
सर्च एल्गोरिथम कंप्यूट द सेम ऑप्टिमल मूव्स एट मीन मैक्स एल्गोरिथम। एक्चुअली बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, उसको पता था ये वाला भी ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हो रही थी क्योंकि दे आर सेइंग कि मैम वहां पर तो हम प्रूनिंग कर रहे हैं, मीन मैक्स में हम प्रूनिंग नहीं करते, एब्सोल्युटली। बट गाइज प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं थी कि दोनों सेम ऑप्टिमल, ये ज्यादा ऑप्टिमल हमें दे रहा और ये नहीं दे रहा, आंसर दोनों का सेम आ रहा था, बट प्रॉब्लम यहाँ थी ये ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा था एज कम्पेयर टू द अल्फा बीटा प्रूनिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रूनिंग नहीं थी। अब एक्चुअली आंसर तो आपका भी वहीं पर भी यही आ रहा है, बट वहां पर क्या था कि जो ये रेस्ट ऑफ द नोट्स थे जो आपने एग्जामिन किया था और जिनको आपने स्टोर किया था अपनी मेमोरी में, वहां ये वाली नोट्स को इन्होंने क्या किया, अल्फा बीटा एल्गोरिथम ने प्रून कर दिया कि आपको इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं, आपको इसको मेमोरी में डालने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ मेमोरी सेव हुई है, बाकी जो आंसर आएगा वो दोनों में ही ऑप्टिमल आएगा। समझ में आया? सो दैट इज द रीजन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ऑप्टिमल प्ले। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली तो रॉन्ग होना ही है, तो 2 ऑप्शंस यू हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, सो बी एंड सी इज द राइट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द 3D प्रोजेक्शन। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पूछे हैं 3D से। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस, इसके अंदर क्या था आपका, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस में रिक्वायर्स होमोजेनियस कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑर्थो प्रोजेक्शन ओनली के लिए द फार अवे प्रोजेक्ट अपीयर द सेम साइज रहता है, इसमें फोरशॉर्टिंग नहीं होती है, राइट। उसके बाद हमारा ये था, क्या था यहाँ पर, ऑर्थोग्राफिक और प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। यूं दैट कि प्रोजेक्टिव होती है, क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है। तो प्रोजेक्टिव में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन ही रहती है, और यहाँ पर क्या रहता है, नीदर ऑर्थोग्राफिक और नॉर प्रोजेक्टिव में डिस्टेंस एंड एंगल्स आर प्रिजर्व्ड। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, Now this is also very simple question from the computer graphics। अगर आपको सारे ट्रांसलेशन की अगर मैट्रिसेस आपको बहुत अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। देखो, ये देखो आप, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की मैट्रिसेस क्या है, इसकी मैट्रिसेस क्या है, यहाँ पर आपके डायगोनल्स में 1 रहता है और टीएक्स एंड टी वाई आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी आपकी टीएक्स एंड टी वाई की वैल्यू है, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ ट्रांसलेशन वैल्यू टीएक्स को मैं 1 कर रही हूँ, वाई को भी 1 कर रही हूँ, या फिर 2 कर रही हूँ लेट्स सपोज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दिस इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स याद करनी मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रोटेशन मैट्रिक्स का भी रोटेशन मैट्रिक्स का ये था। स्केलिंग मैट्रिक्स में हमने बताया था कि इसमें क्या रहता है कि जो आपके स्केलिंग फैक्टर होते हैं वो आपके डायगोनल्स पे प्रेजेंट होते हैं, अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर 0 एंड हियर इज 1। और शेयरिंग में क्या था, शेयरिंग में क्या था, अगर मैं एक्स एक्सिस के अराउंड कर रही हूं तो यहाँ पर ऐसे चेक्स आएगा, वाई के कर रही हूँ तो यहाँ पर, और अगर दोनों के रिलेटेड है तो यहाँ पर ये जो हमारे शेयरिंग फैक्टर्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो अब अगर आपको बहुत अच्छे से मैट्रिसेस याद है तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ये देखो, इन्होंने पहले ही बोला कि ट्रांसलेशन वेक्टर है आपका 2 टी एक्स भी क्या है 2 है और टी वाई भी क्या है 2 है। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांसलेशन वेक्टर वो आपका ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ टी एक्स होता है और यहाँ टी वाई होता है। तो फाइंड आउट करो कहाँ कहाँ है, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी किससे रिलेट करेगा, 4 से करेगा, और ये सिर्फ आपको यहीं पर ही मेंशन है, तो बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद एक और कर लेते हैं, शेयरिंग भी पूछा हुआ है इन्होंने, स्केलिंग पूछा हुआ है। स्केलिंग की अभी हमने देखा, स्केलिंग की ये वाली होती है टेबल, ये वाली होती है ना, तो इसका 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये क्या हुआ, ये रहा, तो ये होगा ए होगा आपका सेकंड, ए हो गया सेकंड। ये आपको पता है कोस थीटा 60 डिग्री आपको वैसे दे रखा है, तो ये वाला होने वाला है, सी क्या होने वाला है, थर्ड, और बचा हुआ हमारा रहा डी, वो हो गया फर्स्ट। इजी, आसान है। चलो, अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको डेफिनेटली बताया था कि जब हम सीएमएम कर रहे थे इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको मैंने दिखाई थी ये वाली टेबल। इस टेबल को करो, सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सीएमएम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपका की प्रोसेस एरिया से आ जाता है, कई बार फोकस पॉइंट से आ जाता है, इस बार फोकस पॉइंट से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो सबसे पहले सीएमएम लेवल है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल।
सो फर्स्ट लेवल इज इनिशियल लेवल, कि मतलब जो हमारी कंपनीज है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है, तो वो सारी कंपनीज बेसिकली का लेवल कितना है, जैसे कि अगर इफ दे आर नॉट यूजिंग एनी सच काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल फॉर फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनिशियल पर्पस। तो इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंट पीपल और बहुत ही एडॉक्सी प्रोसेस रहती है, कि ऐसे टेम्परेरी रहती है कि अगर आया, जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसको मैंने अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने दिया, तो 3 या 4 लोगों की है, तो उसमें कोई प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं करा, बस एडहॉक बेसिस पे वो उन्होंने बना के दे दिया, ठीक है। रिपीटेबल की कैटेगरी में जो कंपनीज आती हैं, उसमें वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसके अंदर होता है। कैसे होता है कि वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, वो सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। अब जो कंपनीज डिफाइंड लेवल पे आती है, उसमें डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ प्रोसेसेस भी होती हैं। ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस की डेफिनेशन, कैसे रहेगा प्रोसेस हमारा पूरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पीयर रिव्यूज भी लिए जाते हैं। फिर आता है मैनेज्ड। मैनेज में क्या है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी, इसके अंदर क्वांटिटेटिव एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी आपकी मतलब क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये बड़ी चीज है क्योंकि इसमें ज्यादा कॉस्ट लगती है, और बहुत ही यू कैन से दैट कि लेस देन 1% कंपनी ऐसी है हमारी इंडिया में जो ऑप्टिमाइजिंग लेवल पे आती है, वहां पर कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट यहाँ पर होती है, डिफेक्ट प्रिवेंशन के लिए, और टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर टेक केयर की जाती है, ये इसके की प्रोसेस एरियाज हैं। तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से पता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान है, कि इनिशियल में कोई प्रोसेस नहीं रहती भाई, बिल्कुल एडहॉक लेवल पे हम चलते हैं। रिपीटेबल के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, लुक एट दिस, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करते हैं, वहां पर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूडेड। नाउ इन द डिफाइंड लेवल में दिस इज वेरी इजी, प्रोसेस की डेफिनेशन, एंड इन द मैनेज लेवल पे प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर शुड बी, फर्स्ट का है फोर्थ, ठीक है, बी का थर्ड सबको पता था, सी का इन्होंने है डिफाइंड का क्या होता है, प्रोसेस की डेफिनेशन, तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट वन, और डी का तो फर्स्ट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एआई पोर्शन। So artificial intelligence, a genetic algorithm is a stochastic Hill search in which a large population of state is maintained. Yes, you know that in the genetic algorithm में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन स्पेस होता है हमारे पास, यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशंस होती है, उसमें से फिर हम सिलेक्ट करके फिर हम क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, एंड फाइनली वी गेट वन ऑफस्प्रिंग्स, राइट। सो इसमें भी ये रहता है, क्लाइंबिंग में भी, कि बहुत सारी स्टेट स्पेस को रख के उसमें से जो बेस्ट है उसको चूज करके फिर फाइंडिंग आउट द नेक्स्ट मूव। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इन्वायरमेंट की टाइप्स मैंने बहुत अच्छे से करवाई थी आपको इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि डिटर्मिनिस्टिक मतलब आप डिटरमाइन कर पा रहे हो, जैसे कि चेस गेम्स है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार वाला एग्जाम्पल लिया था। तो ये यहाँ पर बात हो रही है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट की। एजेंट कैन अप्लाई एंड और सर्च टू जनरेट कॉन्टिजेंट प्लान्स दैट रीच द गोल रिगार्डलेस ऑफ ईच आउटकम अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली एंड और सर्च आपको पता है ना, एंड और सर्च में क्या था, एंड और कि या तो मैं ये वाला पाथ लूं, अगर मुझे ये वाला लेना तो आई हैव टू चूज दिस वन ऑल्सो, ठीक है ना। तो ऑप्शंस लेके वहां पर हम चलते हैं, क्योंकि इफ आई हैव अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरमेंट, तो वहां पर वी कैन अप्लाई दी एंड और सर्च algorithm, right? So this is also right. So correct answer is 1. Now the next question is very easy. ये भी फंक्शन पॉइंट से उन्होंने उठा के दे दिया है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 2017 नेट के अंदर भी आपको पूछा था, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करके दी है, गेट में भी पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है इसका, तो वैसे यूं का यूं उन्होंने उठा के दे दिया है। तो ये इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको फंक्शन पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 864। आप ये देख लो कि डिजाइनर यहाँ पर आपको कितने आपको मेंबर्स दिए हुए हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सन है, 1 डिजाइनर आपको दिया हुआ है, 2 प्रोग्रामर्स आपको गिवन है, और 2 टेस्टर्स आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर लो, डिजाइनर की जो पेमेंट है वो कितनी है, 70,000 है, रिक्वायरमेंट गैदर की है 50,000,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, क्योंकि ये 2 लोग हैं प्रोग्रामर्स, तो उनकी होगी 60,000 और उस वाले की भी कितनी है, 60,000। ठीक है, अब हमें फंक्शन पॉइंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 864 एस्टिमेटेड है। ठीक है, 12 फंक्शन पॉइंट पर मंथ है। ठीक है, और एक सेकेंड, या और हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 पर्सन है टीम में, तो 12 इंटू 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आई थिंक 12 आएगा। इसको हमने किया तो 12 आ गया। तो अब फाइनली हमारे पास वैल्यू निकल गई 12। यू जस्ट हैव टू add the values over here, 70,050 ये, and multiply with 12 and finally you get this। डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा कितना, 4320000। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे हम